Jai Hind everyone, welcome to Shri Ram Public School online classes. In last lecture, by mistake I have started the old chapter that was force, but today we are going to start our upcoming new chapter, that is gravitation. Okay, so let's start with this chapter. So first let us understand the concept of gravitation and understand what is a gravitation. So understand the gravitation. What is a gravitation? Gravitation is the effect, or we can say it is a property of mass, है ना. What is a gravitation? Gravitation is a property of mass. Suppose that any substance which is having some mass, then we can say that that object is having some gravitation, है ना. But the amount of gravitational force, it also depends on mass. So how much amount of force we are feeling, it will depend on how much mass the object is having. We will discuss that the amount of gravitation between two bodies. We'll get it to next step in next topic. Okay, so first of all, let us see what is gravitation. Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe which have some mass. Got it? Which have some mass. If there are masses in any object, then it is only a gravitational force. It cannot repel. It's not like magnets, like same poles will repel each other and like poles will repel each other and unlike will attract each other. They can't, है ना. So gravitation can only attract each other. Gravitation is a attraction force, and these attraction force occur because of the mass only. So suppose that an object is having a larger mass, suppose that it is having a 1 lakh kilogram of mass and another object is having only 50 kilogram of mass, then what will we say? The gravitational force of first body which is having 1 lakh kg will be more than the gravitation force of that 50 kg body. Got it? So gravitation may be attraction of the earth, है ना, attraction of earth. So when earth is attracting any object towards itself, then it is known as gravitation applied by the earth. Suppose that you are dropping something, some object you are dropping, then it is coming obviously downwards. We are not throwing it, but it automatically comes downwards and continuously it increases its speed also. So this is due to the gravitational force. If you will throw some object to upwards, whether you are throwing with some 100 meter per second or 200 meter per second, doesn't matter, it will come back towards the earth surface. Why? Because of the gravitational force of earth. Got it? So this is what? This is the gravitational force. So in our solar panels, solar systems also, we can say that the gravitational force between earth and the moon and the force between sun and the planets or the sun and the earth is the gravitational force. अब since these sun and earth and moon, they are very heavenly body, very heavy bodies, है ना. That means their mass is very much large, very much large. तो इतना ज़्यादा मास होने की वजह से दे possess a lot of gravitation. उनके अंदर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशन होता है. So their gravitation force we can feel, but which bodies which has very less amount of mass, suppose that if we have to compare the gravitation force between two students, then what will happen? They don't feel any kind of attraction force towards each other because their masses are quite low. अब कंपेयर करके देखें, एक स्टूडेंट या कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उसका मास मैक्सिमम कितना होगा? 200 किलो, 250 किलो मैक्सिमम. उससे ज़्यादा कितना? कोई सुमो पहलवान भी आ जाएगा तो 250-300 किलो से ज़्यादा का उसका वेट नहीं होगा. ठीक. और वहीं पे हम अगर हेवनली बॉडीज जैसे कि मून है, अर्थ है, सन है, इनका मास कंपेयर करें तो इनका मास आता है 10⁻22 kg, 10⁻24 kg, 10⁻30 kg, इनके ऑर्डर में आता है. मतलब 1 लाख
करोड़ मास के बराबर हो गया, बहुत लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अकर्स and we can feel it also, but due to the small amount of mass we cannot feel the gravitational force. Got it? Now we have seen that in our solar system Earth and other planets are revolving around the sun. These planets are revolving around the sun, but they are not intersecting each other. They are not moving in others orbit. They are moving in their own orbit. ये सभी अपनी अपनी ऑर्बिट में ही रिवॉल्विंग कर रहे हैं. All of these planets are revolving in their own orbits. Why so? ऐसा क्यों हो रहा है? Because the sun is attracting those planets with the force of gravitation. ये force of gravitation से सभी planets को अपनी तरफ attract कर रहा है ना? And the planets are continuously moving. So when the force of gravitation applied by the sun and force of gravitation applied by the planet, if both are equal, जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे, दोनों फोर्सेज बैलेंस हो जाएंगे, तो बताइए whether the planet will move towards the sun or it will move away from the sun or it will continue to move in the same path. बताइए क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में प्लैनेट्स जो हैं अपनी ऑर्बिट में ही सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिवॉल्व करते रहेंगे. गॉट इट? बिकॉज देयर आर बैलेंस्ड फोर्स. कल ही हमने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. सो बैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है ना. इसी तरीके से सिमिलरली अनबैलेंस्ड फोर्स आर दोज फोर्सेज वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज आर अनइक्वल. अब इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन सेम भी हो सकती है. So let's come back to the centripetal force. So what is a centripetal force? Suppose that an object is moving in a circular path. जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं. ठीक है. अभी जो एक्चुअली में उनका पाथ एलिप्टिकल होता है, बट फॉर नाउ लेट अस कंसीडर द पाथ इज सर्कुलर फॉर नाउ. ठीक. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, तो इन दैट केस वी हैव सीन देयर इज ए फोर्स दैट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. जिस सर्कल के अबाउट वो रोटेट कर रही है उससे दूर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस इट एक्ट्स ए फोर्स विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड द फोर्स विच इज एक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, जो कि सेंटर की तरफ आता है, सेंटर की जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. गॉट इट? सो व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है. द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एक्ट टुवार्ड्स द सेंटर एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो जो ग्रेविटेशनल सिस्टम है, यानी कि सोलर सिस्टम जो है, प्लैनेट्स और सन के बीच का जो सिस्टम है, वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही एक्ट करता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. गॉट इट? ओके. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज गिवन बाय द न्यूटन, है ना. तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो दो हमारे हेवनली दो कोई सी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अभी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमने ये तो कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, बट कितने अमाउंट का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स. टू कैलकुलेट दिस न्यूटन प्रोवाइडेड ए लॉ विच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सिंपली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो व्हाट डज दिस लॉ सेज? सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, दोनों के डिफरेंट मास हैं. ऑब्जेक्ट ए का मास हमने कैपिटल एम लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट बी का मास वी हैव टेकन एज स्मॉल एम. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ध्यान रखना हमने यहाँ पर डिस्टेंस सेंटर्स के बीच की लेनी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है.
तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज डी, इट इज गिवन एज डी। तो ये क्या कहता है, इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, it will be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, मासेज नहीं कहना है कभी भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास या मासेज नहीं कहना है, वी विल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वी विल से इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, गॉट इट। So F is directly proportional to m into m, capital M into small m, and it is inversely proportional to the 1 by d square, यानी कि inversely proportional to the d square. When we combine these two equations, we get F is directly proportional to the capital M into small m divided by d square. और जब ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं, वी गेट ए कांस्टेंट विच इज नोन एज कैपिटल जी, विच इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गॉट इट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या चीज़ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है, ये यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है, हर जगह। इसको अगर फॉर्मूले के टर्म में निकालना है, हम निकालेंगे F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास m1 एंड m2। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, गॉट इट। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको हमेशा याद रखना है। लेट मी रिपीट इट अगेन, व्हाट डज न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ सेज, इट सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज m1 एंड m2। हमारे पास में दो डिफरेंट मासेज हैं m1 और m2, और इनके बीच की डिस्टेंस है d, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। सो इट सेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is directly proportional to m1 m2 by d square, और प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने पर एक कैपिटल जी कांस्टेंट लग जाता है, सो इट इज नोन एज F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 by d square, where g is what, g is the universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, गॉट इट। चलो, तो वी हैव सीन दैट एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स, हर ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ अमाउंट का फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का मास है ना, ये सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी है। जैसे कि इनर्शिया होती है, इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा, दैट ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया, सो इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास ओनली। सिमिलरली ग्रेविटेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मास। ग्रेविटेशन जो है ये भी मास के साथ रिलेटेड है, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, गॉट इट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री यानी कि फ्री, मुक्त हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं गिर, और फॉल यानी कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल। सो व्हाट इज ए फ्री फॉल, सपोज दैट देयर इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड, देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की एक सर्टेन लिमिट होगी जहाँ तक हम उसको फील कर पाएंगे। अब जैसे स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो फ्लोट करती रहती हैं, वाई, बिकॉज देयर इज नॉट द अर्थ्स ग्रेविटेशन इज नॉट दैट मच implied or at that point, so it cannot attract those things towards the center of the earth. क्या हो रहा है कि जब स्पेस में हम चले जाते हैं तो स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिड्यूस हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। इन दैट केस दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट फील एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन,
तो वो सुपरमैन बन जाएगा, मतलब फ्री फ्लोट करेगा, वो ईजिली फ्लोट करता रहेगा। बट व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन द रेंज ऑफ द ग्रेविटेशन। अगर अर्थ की ग्रेविटेशन की रेंज में अगर वो आ जाए ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? तो वो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, अब उसके सुपरमैन की पावर खत्म, अब सुपरमैन की पावर खत्म, एंड दैट टाइम इट विल कम टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कहाँ जाएगा? ये अर्थ के सेंटर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आने लगेगा। गॉट इट? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी भी हाइट से सिंपली ड्रॉप करते हैं, वी हैवेंट थ्रोन इट, वी हैवेंट गिवन ए इनिशियल वेलोसिटी, हमने कोई इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, बट सिंपली उसको ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर ड्रॉप कर दिया। सो दैट ड्रॉप विच इज freely coming towards the center of the earth is known as free fall of the object। समझ में आ गया? अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर सिंपली छोड़ दिया, हमने ले जाके किसी हाइट पर उसको सिंपली छोड़ दिया, हमने थ्रो नहीं किया, हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, बट इट विल ऑटोमेटिकली कम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, बिकॉज ऑफ द gravitation force। So this phenomena of coming towards the center of the earth without applying any external force, without applying our external effort, this fall is known as free fall। और जब free fall होता है, in that case the object एक फोर्स फील करती है, ऑब्जेक्ट फील से फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स देयर जनरेट्स एन एक्सेलरेशन विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? ये क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन में छोड़ेंगे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी, अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी, और सेंटर की तरफ किस एक्सेलरेशन के साथ आएगी? वहाँ पे लगेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट सम प्लेसेस इट्स वैल्यू चेंजेस एंड ऑन सम ओकेशंस वी टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से हमें एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फ्री फॉल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।